4 days after he abused Mahatma Gandhi and praised Nathuram Godse at a supposed Dharam Sansad in Raipur, religious leader Kali Charan has been arrested. The self-styled seer was arrested this morning by the Chhattisgarh police from Khajuraho in Madhya Pradesh. He's been charged with sedition, but what has taken centre stage now is a political fight between the two states. The MP government claims that protocols were not followed in Kali Charan's arrest. वो मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश पेल दिया। वो नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला काली। He resorted to a vile rant against Mahatma Gandhi and hailed murderer Nathuram Godse. And now he's finally languishing in jail for his abusive comments. This is the moment Kali Charan Maharaj, the man who spewed hate at the Raipur Dharam Sansad, was arrested by the Chhattisgarh police. He was in hiding for the last 4 days and was finally nabbed by cops on Thursday morning. Kali Charan was being shielded by a bunch of his aides, and that's how he managed to evade arrest for days. But there's now a face-off that's broken out over where Kali Charan Maharaj was arrested. The Raipur police entered into Madhya Pradesh and arrested the seer from Khajuraho. And the MP government is claiming that permission wasn't sought from the authorities. आपत्तिजनक तरीका है, ये तरीका ठीक नहीं। ये संघी मर्यादा का भी उल्लंघन है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। पहले बता देते, पहले भी बता सकते तो गिरफ्तारी के बाद बता देते। अब तो कल को कोई भी पुलिस का नाम लेके किसी आश्रम में या किसी के घर में घुसेगा और पकड़ लेगा, तो ये एक नई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बन जाएगी। नियम की बात है, नियम के पालन किया जा रहा है, उसमें कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। सवाल यही है कि जब गांधी को गाली दी गई तब भी ये चुप थे, अब गिरफ्तारी हुई तब अचानक ये प्रकट हुए और प्रक्रिया पे सवाल उठाए। अभी भी काली चरण की निंदा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नहीं की। इनके तो मुंह में राम बगल में छुरी। This issue has now become a political flashpoint between a BJP-ruled state and a Congress-ruled state over jurisdiction. But the Chhattisgarh police has maintained that all due protocol was followed. मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली और अन्य जगहों में हमारी टीम रवाना हुई थी और इसमें मध्य प्रदेश की टीम को इसमें सफलता मिली है और काली चरण को खजुराहो के पास बागेश्वर धाम से गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करके रायपुर पुलिस की टीम उसको रायपुर लेकर आ रही है और यहाँ के विधिवत ढंग से न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। रायपुर पुलिस के द्वारा विधिवत कार्रवाई की गई है, किसी भी तरीके से कोई ऐसा वायलेशन नहीं किया गया। क्या Kali Charan's arrest has come as a big breakthrough. The seer, who's been booked for sedition, despite widespread outrage, refused to apologize for abusing the father of the nation. गांधी के मामले में अपशब्द बोलने के लिए मुझ पर FIR दर्ज हुई, मुझे उसका कोई पश्चाताप नहीं है। गांधी ने किया क्या है हिंदुओं के लिए? विश्वासघात किया है देश का। सुखदेव, राजगुरु भगत सिंह जी की फांसी गांधी रुकवा सकते थे, लेकिन नहीं रुकवाई जानबूझ के। इसलिए तिरस्कार करता हूं मैं गांधी का, नफरत करता हूं मैं गांधी से। The man who abused Gandhi, hailed Godse and even spread hate against minorities is now under arrest. A case that surely sets a precedent that hate speeches will not be tolerated. But what's grabbed the limelight now is a fight between two states over the way his arrest took place. Bureau Report, India Today. As part of our election campaign trail, I travelled to the border district of Pithoragarh with Uttarakhand's new Chief Minister Pushkar Dhami. I asked him some pointed questions about the state government's failure to act against those who made these comments at the Dharam Sansad. This is what the Chief Minister said. हाल ही में हरिद्वार में एक धर्म संसद हुई, जहां पर जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने तमाम तरह की बातें की। नाथुराम गोडसे को हीरो बताया, मुसलमानों को मारने की बात की। उसके बाद आपकी सरकार ने अब तक एक भी ऐसे धर्म गुरु को अरेस्ट नहीं किया है, कोई कार्रवाई नहीं की। एक FIR हुई है और वो भी बहुत ही सख्त कानून के तहत नहीं हुई। कि इस पूरे वाक्य को आप कैसे देखते हैं चीफ मिनिस्टर साहब? देखिए, हमने कभी भी किसी पर भी कार्रवाई किसी आधार पर नहीं की है। अगर कहीं पर कोई अगर ऐसी कानूनी कार्रवाई या कोई
ऐसा लगेगा कि कोई कानून तोड़ रहा है, कोई ऐसा काम कर रहा है जो उसकी संज्ञा में उसकी श्रेणी में आता है, जो कहीं ना कहीं नीति संगत नहीं है, तो निश्चित रूप से हम कार्रवाई करेंगे। अभी तक ऐसा कोई प्रकरण हम लोगों के सामने नहीं आया है। अगर कहीं से कोई ऐसी बात आई तो पब्लिक में है, सब लोगों ने देखा सुना कि क्या कहा जा रहा है उस धर्म संसद में। इस तरह की बात तो धर्म संसद में नहीं होनी चाहिए। अब धर्म संसद कोई सरकार के द्वारा प्रायोजित नहीं थी, वो उनकी अपनी होगी, लेकिन हमारे पास इस प्रकार की कोई बात नहीं आई है अभी तक। अगर कोई आपने सोशल मीडिया पे वीडियो नहीं देखे सारे? नहीं, अगर ऐसी कोई कहीं से कार्रवाई की बात आती तो निश्चित रूप से हम लोग उस पर कार्रवाई करवाते। तो ऐसा तो नहीं कि चुनाव नजदीक है, फंसा हुआ चुनाव है, तो थोड़ा पोलराइज कर दो, कम्युनलाइज कर दो, ताकि हिंदूवादी एक माहौल बन जाए। हम चुनावों को लेकर कोई फैसले नहीं ले रहे हैं। हमने जो भी फैसले लिए हैं राज्य के हित में लिए हैं अभी तक। नहीं, वो तो आप ले रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहा है ना कि जैसे एक कॉमेडियन था, उसने जो क्रैक नहीं किया, लेकिन वो क्रैक करता तो उससे दिक्कत हो सकती थी, इसलिए उसको 1 महीने के लिए अरेस्ट कर दिया। यहाँ पे तो खुलेआम जहर उगला जा रहा है, तलवार उठा के मुसलमानों को मारने की बात की जा रही है, और फिर भी आप कह रहे हैं कि कार्रवाई के बारे में आपको कुछ सोचना पड़ेगा। अब तक नहीं किया आपने? नहीं, इसको दिखवाएंगे, आप कह रहे हैं तो अगर ऐसी कोई गंभीर बात होगी तो देखेंगे उसको। Can those who spewed venom in Haridwar get away with their hate speeches? The state police so far doesn't seem to be moving with purpose. There is a pretense of an investigation, but on the ground there seems to be very little action. It seems as if the whole administration just wants the issue to disappear, but can that happen so easily? There has been an arrest in Chhattisgarh which has led to an all-out political war, but is it even right to attempt to shield those who spewed venom and that hatred which came out of their mouth was caught on camera? Joining me on the News Track Showdown, I want to welcome Jitendra Tyagi, aka Wasim Rizvi, former chairperson of the Shia Waqf Board. He is amongst those who have been named in the FIR that's been filed by the police in Haridwar. He has a case under 153A of the Indian Penal Code, which is promoting enmity between different groups on grounds of religion, race, place of birth, residence and language. We also have on this broadcast Acharya Pramod Krishnam, many feeling that what's happening is wrong. In fact, one Dharam Guru even walked out of the Sansad which was taking place in Chhattisgarh, saying, I cannot be a part of this kind of gathering where venom is being spewed. We have Mahamandaleshwar Swami Prabodhanand Giri Maharaj, president of the Hindu Raksha Sena. He is amongst those who were caught on camera spewing venom. Not just did he spew venom the first time, he seems to be quite proud of what he did, seems to be repeating the kind of comments. He is asking for Hindus to rise, and he's also calling for violence very, very openly and in a very, very disturbing fashion. He joins us on this broadcast. Supriya Shrinay joins us from the Congress party. Vikram Singh is back with us, former Director General of Police in Uttar Pradesh. And I want to just tell our viewers that we invited spokespeople from the BJP in Chhattisgarh and Uttar Pradesh and at the national level in Delhi to join us for this broadcast, and the party said they will not be sending spokespeople for this discussion. But it's an important conversation and we will have it regardless of whether the party is officially represented or not, because you can't have a situation where hatred and venom is spewed so openly, where there's an open call to violence which is genuinely detrimental to India's social fabric, and then people just get away. Jitendra Tyagi, क्या पुलिस आपको लग रहा है कि ढंग से इन्वेस्टिगेट कर रही, क्योंकि एफआईआर है आपके पास, आपके खिलाफ 153(1) की, जिस तरह के बयान दिए गए उस मंच पर जहां पर आप मौजूद थे, हमने देखा नहीं उसके बाद पुलिस कोई कार्रवाई करी। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी बड़ा बच के चल रही है, ऐसे एक्ट कर रही कि ये तो कुछ हुआ ही नहीं, हाँ छोटा सा मामला था, क्या फर्क पड़ता है अगर वो लोगों को मारने की बात कर रहे हैं, ऐसा तो होता रहता है, नहीं कुछ नहीं होता, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए ये एफआईआर तो मुल्लाओं के दबाव में हुई है, वहां पर बेसिकली कुछ हुआ तो है नहीं। हम लोगों ने किया क्या? अगर कि हमने धर्म की रक्षा की बात की, धर्म संसद में एक समस्या का समाधान निकालने की बात की, तो उसका इस तरह से उसको ले लिया गया कि जैसे हम असला उठाकर किसी को मारने जा रहे। सर, एक कॉमेडियन को अरेस्ट किया गया जिसने जोक क्रैक नहीं किया, क्योंकि अगर वो जोक क्रैक करता तो लोग परेशान हो सकते थे। 1 महीने उसको जेल में रखा गया ऐसे जोक के लिए जो कि क्रैक भी नहीं हुआ। आप जिस संसद की बात कर रहे हैं वहां पे लोगों को, एक समुदाय के लोगों को मारने की बात की गई, तलवार उठाने की बात की गई, जंग की बात की गई,
इसमें आपको कुछ आपत्तिजनक नहीं दिख रहा है? बिल्कुल नहीं, वहां पर मरने की और जंग की बात ही नहीं हुई। वहां पर यह कहा गया कि जो हमको मारने आएगा उनसे हमको सुरक्षित रहना। देखिए राहुल जी, अब वो वक्त नहीं है, बाबर और औरंगजेब का जमाना नहीं है कि हमारी गर्दन काटने के लिए कोई आए और हम अपनी गर्दनें दे दे। हमने वहां यही बात की है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। खुले तौर पे एक समुदाय के लोगों को मारने की बात कही गई है। नाथूराम गोडसे को हीरो बताया गया है, महात्मा गांधी के खिलाफ बातें की गई हैं, और जो देश का सोशल फैब्रिक है, सोसाइटी को बांटने की बातें की गई हैं। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। आप जितनी अपनी आवाज बुलंद करके बोल लें, इस हकीकत से ना आप भाग सकते हैं ना छिप सकते हैं। जो हरिद्वार में धर्म संसद हुई, वहां पर महात्मा गांधी के लिए किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं हुई, और हम लोगों ने अपनी मीटिंग में यह तय भी किया है कि महात्मा गांधी के इशू पर हम लोग कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन जहां पर अपने सुरक्षा की मामला है, उसमें हमको हिंदुओं को जागरूक करना है, वो करेंगे। आप उसको नफरत की भाषा, आपको असदुद्दीन ओवैसी की भाषा नफरत की नहीं दिखाई देती? आप नसरुद्दीन शाह ने कह दिया कि गृह युद्ध होने की स्थिति में क्या ये देश को भड़काया नहीं जा रहा है? आप हमारी भाषा, हमने वहां पर यही बात कही है कि हमको शस्त्र भी उठाने चाहिए, लेकिन ये नहीं कि सर आप कह रहे हैं कि नाथूराम गोडसे के पक्ष में कुछ नहीं कहा गया। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, धर्मदास महाराज जो कि पटना से एक महंत है, उन्होंने क्या कहा, और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आई एम ओनली पैराफ्रेजिंग पार्ट्स ऑफ व्हाट सेड, not quoting verbatim, because some of what is said is very, very incendiary and provocative. So I can only put out on TV the least of what was said. He is targeting former Prime Minister Manmohan Singh, saying, I wish I was an MP there holding a revolver. I would have become Nathuram Godse and pumped all the 6 bullets into him inside Parliament. So it's an open threat against Manmohan Singh, and you're openly praising Nathuram Godse. और आप बोल रहे हैं कि नाथूराम गोडसे के पक्ष में कुछ नहीं कहा। आपकी वहां से एक स्पोक्सपर्सन हमारे शो पे थी, जो सुप्रिया श्रीनेत भी वहां पे उस टाइम पे मौजूद थी, जो कि ओपनली उस टाइम पे कह रही थी कि हाँ हम नाथूराम गोडसे के फॉलोअर्स हैं, हम तो उनके बहुत बड़े भक्त हैं। अरे भाई, कोई किसी का भक्त हो सकता है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप किसी की विचारधारा को मार देंगे, अपनी विचारधारा उसके विचार में आप ऐसा नहीं कर सकते। I want to quote to you what Prabodhanand Giri Maharaj said. He is the president of the Hindu Raksha Sena, and I can only quote parts of what is said because it is again very, very provocative. आपके बयानों को पढ़कर प्रबोधानंद गिरी महाराज, ये बहुत क्लियर है कि जिस तरह के बयान आपने और बाकियों ने हरिद्वार में दिए, वो बहुत ही भड़काऊ बयान है। आपके मन से एक समुदाय के लोगों को मारने की बात की गई, हथियार उठाने की बात की गई। इस तरह के बयान से समाज बढ़ता है। आप इस तरह के बयान क्यों देते हैं? और तब भी जब आप अपने आप को एक धर्मगुरु कहते हैं, आप कहते हैं कि हम सबको साथ में लेके चलना चाहते हैं, ये देश एक है, इस तरह के बयानों से तो देश बढ़ता है, एक नहीं होता है सर। आने बार आप पहले तो पढ़ाई पीछे की करिए। 1947 में जो डिवीजन हुआ है, और वो डिवीजन इसलिए हुआ कि यहाँ पर देश के मुसलमानों ने ये कहा था कि मैं हिंदुओं के साथ हम नहीं रह सकते, सुरक्षित नहीं, और जब हम सुरक्षित नहीं हैं तो हमको अलग देश चाहिए। भारत के किसी भी एक हिंदू ने ये नहीं कहा कि आप हिंदुस्तान से भाग जाओ, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान मांगा, उनको पाकिस्तान दे दिया गया। लेकिन जब आपने पाकिस्तान मांग लिया, फिर पहला प्रश्न तो ये आप गए क्यों नहीं, दूसरा प्रश्न ये है कि आपने धोखा किया सारे समाज के साथ, और तीसरी बात यह है कि जब एक व्यक्ति को 2 राष्ट्र दे दिए, मुसलमान को हमने 2 राष्ट्र दे दिए, और जो बचा हुआ शेष था वो किसका था? वो केवल हिंदुओं का था। ये किसने बोला बॉस? जो है एक सेकेंड स्वामी जी, ये कौन कह रहा है? नहीं, हिंदुओं के लिए था। ये नहीं है सर, ये आपकी सोच हो सकती है, ये हमारी सोच नहीं है। ये देश उतना ही हिंदुओं का है जितना कि मुसलमानों का है, उतना ही सिखों का है, उतना ही क्रिश्चियंस का। ये आपका अकेले का देश नहीं है सर। ये किसने कह दिया ये आपका देश है? आप कैसे डिसाइड करेंगे ये आपका देश है? आपका देश नहीं है, ये हमारा भी देश है। आपका देश है, हम मना नहीं करते। हम ये कह रहे हैं कि जिन्होंने मांग लिया उनका देश नहीं है, और उनको यहाँ उपद्रव करने का सर, जिन्होंने मांगा वो चले गए, जो रह गए वो हमारे हैं। यहाँ पर दंगा करने का उनको अधिकार नहीं है। किसने दंगा किया है? को रेप करने का अधिकार नहीं है। किसने दंगा किया है? जिस तरह के बयान आप दे रहे हैं उससे दंगा होगा। जिस तरह का बयान आप दे रहे हैं, दंगा उस बयान से होगा।
अरे यहाँ आप रोज आप पढ़ते नहीं है क्या? आप देखते नहीं है? केरल में रोज मारे जा रहे हैं, रोज हिंदुओं को केरल में मारा जाता है और बॉर्डर पे हिंदू को मार के लटका दिया जाता है। आपका मीडिया उस समय कहां जाता है? सर, आप एक फियर साइकोसिस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, आप भड़काऊ बयान दे रहे हैं। अरे आपको पुलिस को गिरफ्तार करना चाहिए। सुनिए महोदय, बात सुनिए। आपके मीडिया क्यों नहीं दिखाता? जो वाक्य होता है मीडिया सारे वाक्य दिखाता है। जैसे हम ये वाक्य दिखा रहे हैं वैसे हम बाकी वाक्य दिखाते हैं। लटका दी जाती है आपको और उसके बाद हम अपनी रक्षा नहीं कर सकते। आप हमको अपनी रक्षा से भी रोकेंगे? ये किसने बता दिया आपको हम आत्मरक्षा नहीं करेंगे? हमने जो संसद में कहा, सब लोगों ने यही कहा है कि हमको आए दिन मारा जा रहा है, हमारे साथ रेप हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं और हमको अब खड़ा होना पड़ेगा, इसको रोकना पड़ेगा। और हम आपके कहने से नहीं रुकने वाले, माननीय, समझ लीजिए। हम अपनी आत्मरक्षा के लिए पुनः दोहरा रहे हैं। अगर हथियारों की जरूरत होगी तो हम हथियार भी उठाएंगे, लेकिन हम अपनी रक्षा करेंगे। आप ये चाहते हो हमारी गर्दन आराम से कट जाए और आप हमारे तमाशा बनाओ? सर, कोई तमाशा नहीं बना रहा, तमाशा आप बना रहे हैं। जिस तरह के बयान दे रहे हैं, जिस तरह के समाज को बांटने के बयान दे रहे हैं, तमाशा सर आप कर रहे हैं। ये आप भली भांति समझ लीजिए और जान लीजिए। और जो आप कह रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, वो बहुत गलत है। वो इस देश के लिए बहुत गलत है, वो इस समाज के लिए बहुत गलत है। आप जहर घोल रहे हैं समाज में। कर रहे हैं आप बहुत गलत कर रहे हैं। सुनिए मान्यवर, आप जो गलत कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। आप हमारे बयानों को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। आपके बयान को कोई तोड़ मरोड़ के पेश नहीं कर रहा है। आप लोगों ने जो कहा वो आपको बताया जा रहा है। अब आप उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। अब उस कॉन्टेक्स्ट को आप बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा बयान तब भी रिकॉर्डेड है और अब भी रिकॉर्डेड है हमारा बयान। हम बयान से कभी नहीं बचते। हमको अगर कोई मारने आएगा फिर कह रहे हैं तो हम हथियार लेकर के उसको इलाज करेंगे, उसकी सफाई करेंगे। हमने ये बात कही, अब कहेंगे फिर बार बार कह रहे हैं हम कभी नहीं बचते। आपको जानकारी नहीं है। हम ये बयान 2017 से दे रहे हैं, आज से नहीं दे रहे, कि हिंदुओं को अपनी सुरक्षा के लिए खड़ा हो जाना चाहिए। सर, क्या आप नाथूराम गोडसे को हीरो मानते हैं? क्या आप नाथूराम गोडसे को हीरो मानते हैं? नाथूराम गोडसे से मेरा कोई लेना जाना नहीं। नाथूराम गोडसे ने क्या किया, नाथूराम गोडसे जाने, ठीक है ना। हम अपनी बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि भारत में जो इस्लाम का जिहाद है, ये भारत के एक एक व्यक्ति के लिए खतरा है और इस्लाम का जिहाद खत्म होना चाहिए। बिल्कुल इसे खत्म करेंगे। और हमने धर्म संसद की कोर कमेटी में तय किया है कि इस्लाम का जिहाद जब तक धरती पर रहेगा तब तक हम युद्ध करेंगे। हम उसके लिए तैयार हैं। बिल्कुल हम एक एक व्यक्ति को तैयार करेंगे। इस धरती से इस्लाम का जिहाद खत्म होना जरूरी है और इस्लाम का जिहाद जब खत्म होगा तभी मानवता बचेगी। माननीय, आप भी नहीं बचोगे। ये इस्लाम का जिहाद कितना खतरनाक है आपको दिखाई नहीं देता। बयान आपके हैं वो बेहद खतरनाक है। जो बयान आप दे रहे हैं वो बेहद खतरनाक है, वो बड़ा क्लियर। नाउ प्रॉब्लम सुप्रिया श्रीनेते is that it's the police which has to act against them. However offended you may feel or I may feel by some of these comments, it's the police that needs to act. And the only change that's been made between the last time we met and now is that a couple of additional names have been added to the FIR. Earlier the FIR was only against Jitendra Narayan Tyagi, who's on this broadcast. He roams around unfettered, no action against him so far. Now Annapurnama and Hindu Mahasabha General Secretary Dharamdas Maharaj, more names have been added to the FIR. Apart from that, the police doesn't seem to have done very much. In fact, the cops seem to be standing with the accused and having a laugh. Rahul, I have only one request. Please put his audio down because I need to say some important things here. I cannot overshout him. It's important that people of this country understand. This Mr. Giri, who was just speaking, इन्होंने तो यहाँ तक बोला था जैसे म्यांमार में हुआ था वैसे हिंदुस्तान में करना है. To paraphrase what he has said, 86% आबादी को आप भड़का रहे हैं. आपको लगता है हिंदू इतने बेवकूफ है? आप किस हिंदुओं की रक्षा की बात कर रहे हैं? मेरे जैसे हिंदू आपको कातिल समझते हैं. मेरे जैसे हिंदू, चुप रहिए आप. मेरे जैसे हिंदू आपको दोषी मानते हैं और मेरे जैसे हिंदुओं का मानना है कि आपकी और वसीम रिजवी की जगह सलाखों के पीछे हवालात में होनी चाहिए. जिस देश के कानून की धज्जियां आप लोग उड़ाते हुए घूम रहे हैं वो इसलिए उड़ा रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड की पुलिस आपके साथ ठहाके लगा रही है. हवालात की हवा लगेगी ना 10 दिन, आशिक इश्क भूल जाता है हवालात की हवा खाकर. आप इस तरह के बरगलाने वाले बयान नफरत की बांधी छोड़ देंगे, ये मेरा मानना है.
जो पुलिस ने छत्तीसगढ़ में किया है कालीचरण को अरेस्ट कर बिल्कुल ठीक काम किया है। आप गांधी के देश में गांधी को गाली देंगे, आप मुसलमानों को मारने की बात करेंगे, आप म्यांमार जैसे यहां पर रोहिंग्यास को काटा गया वैसी बात करेंगे और बाकी देश चुपचाप मूक दर्शक बना रहेगा। मैं नहीं मानती आप 109 करोड़ हिंदुस्तानी जो हिंदू हैं उनके प्रतिनिधित्व यहां पे कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, उत्तराखंड की पुलिस को शर्म आनी चाहिए। 19 दिसंबर को यह बात कही गई थी, आज 30 दिसंबर हो गया, 11 दिन से ऊपर हो गए, एक गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये कौन ठेकेदार बने घूम रहे हैं धर्म के, सबसे पहली बात। और दूसरी बात जो आपने बिल्कुल सही कही, जो ठहाके लगा रही है पुलिस, जो डीजीपी कहते हैं कि जेनोसाइड की बात करी गई है लेकिन अभी वायलेंस नहीं हुआ है, तो क्या आप वेट कर रहे हैं कि पहले मारा काटा जाए उसके बाद आप गिरफ्तार करेंगे? और अंत में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूं, आज नरेंद्र मोदी जी उत्तराखंड हल्द्वानी में सभा कर रहे थे अभी से 2 घंटे पहले, उनके मुंह से एक शब्द नहीं फूटता ऐसे लोगों के लिए। इनका तिरस्कार करना चाहिए, इनको जेल में डालिए, सड़ेंगे, अपने आप हिंदू धर्म के ठेकेदार स्वयंभू बनना भूल जाएंगे। जिस धर्म में मेरी मान्यता है वो शांति और सौहार्द सिखाता है, वो सर्वधर्म संभाव सिखाता है, वो नफरत की गंदी आंधी गांधी को गाली देना बिल्कुल नहीं सिखाता है। ये मैं फक्र के साथ कहती हूं, मैं ऐसे हिंदू धर्म की अनुयायी हूं जहां पर मर्यादा और कानून की बात होती है, जहां पर ऐसे लफंगों की बात नहीं होती है। चुप रहिए आप लोग, क्या बात करते हैं आप किसी को मार डालिएगा, यहाँ पे रोहिंग्यास की तरह आप हत्या कराइएगा, ये बात आप कहते हैं, और आप यहाँ पे भगवा पहन के हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। आप हिंदू धर्म के नाम पर धब्बा है, आप धब्बा है हिंदू धर्म के नाम पर, आप हिंदू धर्म के हो ही नहीं सकते हैं। आप गलत बात करते हैं हिंदू धर्म के लिए, आप हिंदू धर्म को बदनाम करने का आपने ठेका लिया है। Vikram Singh, what you are seeing is very dangerous. Not just were comments made which were incendiary at that so-called Dharm Sansad. I refuse to call it a Dharm Sansad because this is not what Dharma is about. Secondly, it's been more than a week since the incident. Apart from filing an FIR, calling the accused for questioning, the Uttarakhand police seems to be going very slow in this whole matter. Slow, Rahul ji, I beg your pardon, they are marking time. And the body language of the investigator who was there, seems to having a veil of a time with the accused. I do not say that they are guilty, but they are the accused. And maintaining respectable distance from the accused is an essential ingredient of sane investigation, fair and transparent investigation, which the officer failed to do. I would rather that you have an SIT, ensure arrest in the next 24 hours. Already the last vestiges of your credibility have taken a bashing, and now whatever is left, if you want to redeem that, ensure early arrest of all the accused. Because in any case, you have put such light charges, most of them are bailable. My advice would be to invoke the provisions of subclause 2, Public Order National Security Act, so that they are at least languished for at least 12 months, if not more. And also, those people who organize this, the so-called Dharm Sansad and this conclave, they also need to be booked also as co-conspirators. What they said is unpardonable, and the police, in the guise of collecting evidence, I think they are barking up the wrong tree, hunting with the hound and running with the fox. I would have been very satisfied if immediate arrests were made, because there is no further proof record, because everything is on tape. And if it is on tape, they jolly will go behind bars, and if there is evidence to the contrary, only then there will be a mitigating circumstances for them. Otherwise, as Supriya ji had said, the place for them is the jail. They could require psychiatric intervention also. I have my serious reservations about the stability. आचार्य प्रमोद कृष्णन, हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ जो साधु समाज के लोग हैं वो खड़े भी हो रहे हैं और कह रहे हैं कि जो कहा गया, जो किया गया वो गलत है। कुछ ने वॉकआउट भी किया ये कहते हुए कि नहीं, हम इस तरह के किसी भी मंच का हिस्सा नहीं हो सकते जहां पर देश को बांटने की बातें कही गई। क्या आपको लग रहा है कि बाकी जो धर्म गुरु हैं, जो कि जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं उससे इत्तेफाक नहीं रखते, उन्हें भी खड़ा होना चाहिए, कहना चाहिए कि नहीं, ये जो कहा जा रहा है, ये जो किया जा रहा है, हम इससे सहमत नहीं हैं और हम इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाते हैं? राहुल, धन्यवाद। आप मुझसे ये बहुत गंभीर सवाल पूछ रहे हैं। इसमें 3 बिंदु हैं। एक बिंदु है धर्म का, एक बिंदु है कानून का, तीसरा बिंदु है सियासत का। जहां तक धर्म का ताल्लुक है तो मैं बताना चाहता हूं कि हिंदू धर्म क्या है। क्षमा का नाम हिंदुत्व है, त्याग का नाम हिंदुत्व है, दया का नाम हिंदुत्व है, उदारता का नाम हिंदुत्व है, सत्य, अहिंसा और करुणा का नाम हिंदुत्व है, सेवा का नाम हिंदुत्व है। इसीलिए
भगवान को करुणा निधान कहा गया है, दया का सागर कहा गया है, दीन बंधु कहा गया है। हमारा धर्म वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष करता है। हमारा धर्म, सनातन धर्म, हिंदू धर्म विश्व बंधुत्व का सूत्र देता है पूरी दुनिया को। हमारा धर्म तो किसी चींटी को मारने की भी अनुमति नहीं देता। जहां तक मैं जानता हूं, ये धर्म के नाम पर अधर्म है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। आज महात्मा गांधी की मां पुतलीबाई गांधी की आत्मा रो रही होगी कि जिस गांधी ने इस देश को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो गांधी इस देश की आत्मा में बसा है, आज उस गांधी को मां की गाली दी जा रही है। सवाल ये नहीं है कि गांधी को क्या कहा गया, वो गांधी को गाली नहीं है, गांधी की मां को गाली है। और हमारा धर्म तो कहता है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी का सम्मान कराना हमारे धर्म की विशेषता है। हमने गांधी को अपमानित नहीं किया है, हमने गांधी की मां की आत्मा को दुखाया है, पहली बात। दूसरी बात, कानून का सवाल है। जहां तक उत्तराखंड के अंदर धर्म संसद का आयोजन हुआ, तो ये सवालों के घेरे में इसलिए खड़ी नहीं हुई कि धर्म संसद की तमाम नीति नियमों का पालन करते हुए धर्म संसद बुलाई जाती तो किसी को कोई ऐतराज ना होता। लेकिन धर्म संसद के नाम जो वहां हुआ, मैं पूछना चाहता हूं, मैं स्वामी जी का सम्मान करते हुए पूछना चाहता हूं, प्रबोधानंद जी का, मैं व्यक्तिगत रूप से भी उनका सम्मान करता हूं, तो बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, बड़े आदरणीय हैं, लेकिन उन्हें क्या हो गया? हिंदू धर्म की किस किताब में लिखा है कि मुसलमानों को गाली दो? हिंदू धर्म की किस किताब में लिखा है कि दूसरे धर्म को मानने वाले लोगों का गला काट दो? हिंदू धर्म की किस किताब में लिखा है कि शास्त्र को छोड़ के शस्त्र उठाओ? और अगर शस्त्र उठाना ही धर्म है तो भारत तालिबान नहीं है, ये हिंदुस्तान है। यहाँ एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। प्रबोधानंद जी, आप जवाब दीजिए। आचार्य प्रमोद कृष्णन को कह रहे किस ग्रंथ में लिखा है कि हथियार उठाओ या मुसलमानों को गाली दो? राहुल, मेरी बात को पूरी होने देते। 10 सेकंड मुझे दे दीजिए राहुल, 10 सेकंड प्लीज। राम जी ने राक्षसों को मारने के लिए, रावण को मारने के लिए धनुष बाण उठाया। कृष्ण ने सुदर्शन चक्र लिया। ये हमारे धर्म ग्रंथ में ही है। राक्षसों का वध करना, आतताइयों का वध करना, दुराचारियों का वध करना, पापाचारियों का वध करना, ये हमारा धर्म ग्रंथ ही सिखाता है। और प्रमोद जी ने शायद अधूरा पढ़ा है ये बात। हम लोग सहिष्णु है, ये बात ठीक है, हमारे हृदय में दया भी है, ये भी ठीक है। लेकिन अगर कोई आतताई राक्षस हमको हमारी हत्या करने आएगा तो हम सबक सिखाना जानते हैं उसको। राम की तरह, कृष्ण की तरह, शिवाजी की तरह, महाराणा प्रताप की तरह। एक इतिहास भरा पड़ा है। शिवाजी ने हथियार उठाया, महाराणा प्रताप ने हथियार उठाया। हमारी परंपरा है, हम उस धार्मिक परंपरा का ही पालन करने के लिए धर्म संसद का आयोजन किया है। हमको, प्रमोद जी को ये पता नहीं है। प्रमोद जी को बचाने भी हम ही जाते हैं। प्रमोद कृष्ण हमारे अपने हैं और प्रमोद कृष्ण को मुसलमानों जब घेरा जाता है तो हमारे लोग ही जाते हैं प्रमोद कृष्ण के लिए। और हम आगे भी जाएंगे। Wants to come in and counter that, आचार्य प्रमोद जी। लेकिन कोई भी राहुल जी, हमारा, हम हर हिंदू को बचाएंगे और हिंदू को बचाने के लिए अस्त्र उठाने की जरूरत होगी तो उठाएंगे। ये हमारे राम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, सभी महापुरुष कहते हैं। और जिन्होंने ग्रंथ नहीं पढ़ा तो मैं क्या करूं भाई? ये तो पूरा विश्व जानता है। जवाब देना चाहता हूं राहुल जी, उन्हें शांत करिए। सुदर्शन उठाया, महाभारत कराया, पूरा विश्व जानता है। राम जी ने धनुष बाण लिया और कहां तक गए? लंका तक जवाब देना चाहता हूं। लंका तक राक्षसों को मारा। तो आप एक बात बताओ हमको, मुझे जवाब देने का मौका दो। आचार्य प्रमोद, आचार्य प्रमोद, देखिए, अभी स्वामी जी ने कहा कि भगवान राम ने शस्त्र उठाया, कृष्ण ने शस्त्र उठाया। भाई, भगवान कृष्ण ने तो कहा परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यानी कि राक्षसों का वध करने, धर्म की स्थापना करने युद्ध कराया। लेकिन क्या आप मुसलमानों को राक्षस मानते हैं? का संहार करना चाहते हैं? दूसरी बात,
दूसरी बात, भगवान राम का आपने उदाहरण दिया। भगवान राम की पत्नी का, भार्या का हरण किया रावण ने। मुसलमानों ने बनने से रोका है, आप उनकी पूजा करोगे? बोलो। कहना चाहता हूं, भगवान राम है, हमारे धर्म के आधार हैं, हमारी आस्था के आधार हैं। भगवान राम ने अपनी पत्नी का रावण दी। ये कैसा देश है? महात्मा गांधी की मां को गाली दी जा रही है, और मैं गांधी का फॉलोअर हूं। गॉडसे ने गांधी की हत्या की, मैं गॉडसे का विरोधी हूं, लेकिन मैं गॉडसे की मां का सम्मान करता हूं। मैं गॉडसे की मां को गाली नहीं देना चाहता। मैं गॉडसे को राक्षस मान सकता हूं, अपराधी मान सकता हूं, देशद्रोही मान सकता हूं, हत्यारा मान सकता हूं, लेकिन मैं उसे हरामी नहीं कह सकता, क्योंकि हरामी कहना किसी की मां का अपमान है। ये भारत की संस्कृति सभ्यता का अपमान है। भारतीय संस्कृति और सभ्यता के साथ साथ ये हमारे सनातन धर्म को के माथे पे कलंक है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। जहां तक सवाल है राक्षसों का, और आप कहते हैं शस्त्र को इकट्ठा करेंगे स्वामी जी, तो इस देश से फौज हटा दी जाए, बीएसएफ हटा दी जाए। हम भी उसकी निंदा करते हैं। महात्मा गांधी को मां को गाली देने का हम कोई समर्थन नहीं करते। हाथों में बंदूक उठाएं, सारे हिंदू AK-47 ले लें, तो ये देश तालिबान बन जाएगा। कांग्रेसी लोग स्वामी जी, रायपुर अगर इस देश का 110 करोड़ हिंदू हाथ में AK-47 उठा लेगा, तो ये देश हिंदुस्तान रह पाएगा या ये देश तालिबान बन जाएगा? फिर तालिबान में और हिंदुस्तान में फर्क क्या रहा? धर्म के नाम पर जो कट्टरता इस्लाम में आई, उसी से तमाम दुनिया में इस्लाम के माथे पे कलंक लगा, और तमाम दुनिया में इस्लाम को आतंकवादी की दृष्टि से देखा जाने लगा। क्या जो फैनेटिज्म, जो कट्टरता, जो अपराध इस्लाम के नाम पे दुनिया को परोसा गया, आप वो चाहते हैं कि हमारा धर्म भी हाथ में AK-47 लेकर के और उसी रास्ते पे चले? आपसे मुझे ये जवाब चाहिए। सनातन धर्म उदारता का नाम है, सनातन धर्म विराटता का नाम है, सनातन धर्म संकीर्णता का नाम नहीं है, सनातन धर्म प्रेम सद्भावना का नाम है। नफरत का नाम सनातन धर्म नहीं हो सकता। स्वामी जी मुझे जवाब यही चाहते हैं कि हम भी उसी रास्ते पे चले। जिहाद के नाम पर हत्या करना, रेप करना, लूट करना बंद कर दे। हम भी यही चाहते हैं मान्यवर। और आपको एक बात और बता दूं, सुनिए प्रमोद जी, रायपुर में जो महात्मा गांधी की मां को गाली दी गई, उसके आयोजन करने वाले कांग्रेस के पुराने नेता हैं, और नहीं मालूम हो तो आपको नाम बता देता हूं, राम सुंदर दास जी महाराज। और वो ताली बजा रहे थे वहां पर उसके भाषण पर, और जब तक वो रहा तब तक ताली बजाते रहे, और हमने ताली नहीं बजाई। हम भी उस धर्म संसद में बैठे हुए थे, लेकिन वो ताली बजाने वाले भी आपके कांग्रेसी थे, और वहां पर उसकी व्यवस्था करने वाले भी कांग्रेसी थे। तो आपको उनको पकड़ना नहीं चाहिए क्या? राम सुंदर दास को भी पकड़ो आप। प्रबोधानंद जी, जहां तक राम सुंदर दास का प्रश्न है, वो उनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। मैं उनके आश्रम में भी गया हूं छत्तीसगढ़ में। उन्होंने अपने उद्बोधन में साफ उस बात की निंदा की और उस संसद को छोड़ के चले गए, उस आयोजन को छोड़ के चले गए। नहीं, पर वो तो कैमरे पे, आप पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, वो तो कैमरे पे है। महंत राम सुंदर कहते हैं कि जो कहा जा रहा है उससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता, मैं अपने आप को इस इवेंट से अलग करता हूँ। ये कह के वो मन से चले गए। सत्य बोल करके भ्रामक स्थिति पैदा ना करें। ये बात उन्होंने जब स्वामी जी, ना, ये गलत बात है, ये गलत बात है, और जब वो भाषण दे रहे थे कालीचरण जी, तब वो ताली बजा रहे थे मान्यवर, तब क्यों नहीं बोले? मेरा सीधा सवाल आपसे है स्वामी प्रबोधानंद जी महाराज। घंटे भाषण दिया उन्होंने, मेरा सीधा सवाल आपसे प्रबोधानंद जी, प्रबोधानंद जी, मेरा महामंडल जी, मेरा सीधा सवाल है। एक बार क्या आप, मेरा सीधा सवाल है, मेरा सीधा सवाल है प्रबोधानंद जी, क्या आप महात्मा गांधी को गाली देने वाले कालीचरण की निंदा करते हैं, या उससे अपने आप को सहमति व्यक्त करते हैं? मेरी बात सुन लीजिए, हमने ताली तब भी नहीं बजाई, तब भी वहाँ रामचरण दास जी पास में बैठे थे, राम सुंदर दास, उन्होंने ताली बजाई। क्या आप ये मानते हैं कि कालीचरण ने ये अपराध किया, महात्मा गांधी को गाली अपराध किया, कालीचरण अपराधी हैं, कालीचरण के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्या आप मानते हैं या नहीं मानते? देखो, क्या उन्होंने वो कार्रवाई में आते कि नहीं आते, कानून जाने। पहली बात तो ये है, उसके हम पक्ष में नहीं है। हमारा ये कहना है कि आयोजक वहां कांग्रेसी थे। दूसरी बात, आयोजन में जब वो 1 घंटे बोल रहा था, रोका क्यों नहीं गया?
1 घंटे बोलने के समय ताली क्यों बजाई आपने? इसका मतलब आप देश में प्रोपेगेंडा बनाना चाहते थे। हम वहां बैठे हुए थे, हमको 15 मिनट बोलने दिया गया। महाराज आप बात को घुमा रहे हैं। No, but now we're going off track. The fact is that whoever said this was in the wrong and action needs to be taken against this. Supriya Shrinate wants to come in. You know, we're seeing a very divisive, very unfortunate kind of split, and the worst part is that it's the police that needs to act. If they're talking about taking up arms and killing people, it's the police that needs to act under the relevant provisions of the law, and Vikram Singh has even suggested provisions which should be invoked for such comments. Rahul, two things that I would want to say here. This is not divisive. This is outright supporting a call that you've given previously, for which there has been a case lodged. Of course, you haven't been named in that case. उत्तराखंड पुलिस इनके खिलाफ क्या एक्शन करेगी? पुष्कर धामी तो इनके चरणों में गिरे रहते हैं। उन्होंने इस देश के संविधान की कसम खाई है, इस देश के संविधान से चलाने की सरकार की कसम खाई है। इनको उठा के हवालात में डाले, सब सही हो जाएगा। कालीचरण की मुखालत आप यहाँ पे आकर करिएगा। गांधी को गाली देने वाले कौन लोग हैं? आप जैसे लोग हैं। गांधी को गाली देने वाले कौन लोग हैं? यति नरसिंहानंद, जिनके साथ आप खड़े रहकर धर्म संसद और नफरत संसद की बात करते हैं। आप किस तरह की बातें कर रहे हैं यहाँ पर? एंड राहुल, आई विल ऑल्सो से वन मोर थिंग. दिस इज नॉट जस्ट अबाउट द पुलिस. लेट्स नॉट अब्सॉल्व द पॉलिटिकल क्लास हियर. व्हाई आर वी अब्सॉल्विंग द पॉलिटिकल क्लास? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वेयर डज द बक स्टॉप? केंद्र सरकार में अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी के मुंह पे बिल्कुल पट्टी बंधी हुई है. पुष्कर धामी जी कॉन्क्लेव में आके कहते हैं मुझे अनभिज्ञता है, मुझे कुछ पता ही नहीं है. तो आप मुख्यमंत्री किस बात के बने हुए हैं? उठाइए झोला और चलते बनिए. अगर ये उत्तराखंड को छोड़कर किसी और सरकार में हुआ होता तो अभी तक आप जेल में होते, और वही आपकी असली जगह है. यहां पर आप इतरा रहे हैं क्योंकि पुलिस आपके सामने कुछ कर नहीं पा रही है और सरकार आपके सामने हाथ बांधे खड़ी है. मैं दावे के साथ कह सकती हूं, अगर आपने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में किया होता, आप अभी तक जेल में हवालात के पीछे होते, जो आपकी असली जगह है. चुप रहिए आप. जैसा कालीचरण के साथ सेडिशन का केस हुआ है, वही आपके साथ होना चाहिए था. हमारे देश में हिंसा फैलाने का आजादी हम किसी को नहीं दे सकते, हिंदू हो, मुसलमानों, कोई भी हो. As simple as that. You cannot talk about arms. आप लोगों ने 70 साल गुंडागर्दी की है हिंदुओं के साथ. आप हिंदू धर्म के बिल्कुल रक्षक नहीं है. मैं आपका अपना प्रतिनिधित्व नहीं मानती हूँ. आप मेरे धर्म पर धब्बा है. तुम कलंक हो मेरे धर्म पर. आप मेरे धर्म पर कलंक है. आप मेरे धर्म पर बिल्कुल भी, मैं ना आपके अनुयायी हूँ, मैं अपने धर्म के अनुयायी हूँ. आप मेरे धर्म पर सबसे बड़े कलंक है. आपको जेल में होना चाहिए था. आप मेरे धर्म के नाम पर कलंक है. In case you're wondering why we would do a discussion which features those who made these kind of comments, it's because what is being said is no longer something you can dismiss as being commentary of the extreme fringe. If they make these comments, get away with it, they're more and more emboldened because there is no penal action, which is why we're calling upon the Uttarakhand police to take cognizance of the tapes and to act not just as a pretense but to act for real, because those comments are very, very clear. And if you can arrest people for jokes they didn't crack, because they could have cracked jokes which could have caused tensions, these kind of statements create real tensions in society. And as a country, as a people, we need to stand up and oppose such comments. They can't get away by saying we are a Mahamandaleshwar and I'm God's man. You're not. If you're asking for bloodletting, if you're calling for people to be killed, you are and cannot be a man of God. I'm slipping into a break. We'll track this story closely. I'll have more for you when we come back on the other side. Stay with us.